وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ٹاؤن چیئرمین اور اس کے علاوہ معززین یہاں آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ریسکیو ورکرز ہیں، ادھر جو سامنے میرے کھڑے ہیں اسمارٹلی ٹرسٹ، آپ سب کو السلام علیکم۔ جی اے بھٹو، ابھی قاری صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے انسانیت کو بچایا ہے۔ یہی مقصد ہے اس ریسکیو 1122 کی انیشیٹو کا۔ ضرورت بہت پہلے سے تھی، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم اس طریقے سے اس کو پہلے ایکسپینڈ نہ کر سکے۔ 2022 کا فلڈ آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ ہماری حکومت کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک سے بات کی، جو سندھ فلڈ ایمرجنسی رسپانس پروگرام تھا، جس کو آپ سن رہے ہیں، جس میں آپ دکھایا گیا کہ جو فلڈ سے تباہیاں ہوئی تھیں، جس میں روڈ تھے، واٹر سپلائی اسکیمز تھے، وہ سب تو بنائی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ اللہ نہ کرے اور اب یہ کلائمیٹ چینج کی جو بات ہے، یہ ایسی امتحانات رب کی طرف سے آتے رہیں گے، تو ہم نے کہا ہمیں اپنی ریسکیو سروس کو اور بہتر کرنا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے، 2022 میں میں نے جو ان کا سینٹرل کمانڈ کنٹرول سینٹر تھا اس کا افتتاح کیا تھا، اور آج یہاں ہم جو 16 سینٹرز بنے ہیں تھرو آؤٹ دا پروونس، جن کا خاص مقصد ہے کہ ہائی ویز پہ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایکوپ کریں۔ ہم نے نہ صرف وہ ایکوپمنٹ دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو ایک ماڈل دیا ہوا ہے کہ فائر بریگیڈ یا ایمبولینس، یہ ریسکیو کی جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈوزرز، ایکسکیویٹرز، یہ سب ایکوپمنٹ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی، ان کیس آف اے نیچرل ڈیزاسٹر۔ اور جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہمیں پرابلم ہوتی تھی یہ سارے اکٹھے کرنے کے لیے، تو اب یہ 16 سینٹرز بنے ہیں، اور مجھے بھی منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ پروگرام اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہے، ساحلی پٹی جو ہے، اس میں ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کا پروگرام منسٹر صاحب نے بنایا ہے کہ وہاں پہ جو واٹر سے ریسکیو ہے اس کی بھی سہولیات دی جائے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں ہے کہ وہ ٹرینڈ ریسکیو ورکرز، جو کہ جان ہے، اس پوری ایکوپمنٹ تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ جان بچائیں گے لوگوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کی ہم نے تیاری کی۔ اور اب دیکھ رہے ہیں سامنے جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ہیں ریسکیو سروسز کے، ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا جو فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں، اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ان کو بہترین ریسکیو سروس ہو۔ تو میں خاص طور پہ جو ہمارے ریسکیو کے نوجوان اور ہماری خواتین ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کی کامیابی آپ لوگوں پہ منحصر ہے۔ تو آپ اس ڈیڈیکیشن سے، اس پیشن سے اپنا کام کریں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں، آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا 9/11 والا، آج تک وہ اپنے فائر فائٹرز کو یاد کرتے ہیں جن لوگوں نے لوگوں کی جان بھی بچائی تھی اور اپنی جان مشکل میں ڈالی تھی۔ تو آپ ایک سمبل بنے حکومت سندھ کا، آپ اپنی ڈیڈیکیشن سے، جیسے میں نے کہا اپنے پیشن سے
अपनी खिदमत से ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, जैसे मैंने कहा, उसका दारोमदार उसकी कामयाबी के आपके ऊपर होता है, तो आप लोग उस पर काम करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर PND को, मुर्तज़ा वहाब जिन्होंने आई बिलीव ये जगह दी है मेयर कराची ने, जो जिस पे ये रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, कि इन लोगों ने सबने अपना हिस्सा डाला है इसमें, और इंशाअल्लाह ताला ये जो कोशिश है हुकूमत की अपने लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की, वो कामयाब होगी। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। मैं एक मुर्तज़ा आपने कहा था इधर लाला में बैठे हैं आप सारे, मैं तो कहता हूँ स्कीम प्रॉपर बनाएं, सिर्फ ये नहीं कि लिख के भेज दिए, वो काम नहीं। मेरा तरीका ये नहीं है कि जो भी दरख्वास्त है उसमें लिख के दे दूँ, फिर वो होता नहीं है। स्कीम प्रॉपर बनाएं। वैसे तो चेयरमैन साहब के ख़ास हिदायत हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज में, और वो पैसे भी मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन मुझे अभी अली अहमद ने बताया, मैं जब इलेक्शन के दौरान महम पर आया था, इलेक्शन कैंपेन में एक जलसा भी किया था हमने, उस वक्त भी हमने ये बात की कि अली अहमद अब आपकी जिम्मेदारी है, और पहला आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग मिल के स्कीम प्रॉपर बनाएं। मिनिस्टर PND बैठे हैं, वो उनके पास जमा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपका ड्रेनेज का मसला है, हमने बड़ी कोशिश की है, और अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी कामयाबियाँ भी हुई हैं। मुझे 2006-07 वाले फ्लड्स भी याद, जो बारिश है वो भी याद है, और फिर जो 2020 और 22 में हुई है बतदरीज शहर में बेहतरी आई है। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है, शहर के मसाइल बहुत हैं, वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं हैं, मसाइल दिहाइयों के हैं जो एयर प्लानिंग हुई है शहर में। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी अब वो बैठे मेयर है उसकी है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस शहर, इस सूबे के लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। सेंटर का मैं जल्दी से दौरा भी कर लूँगा, देख लूँगा कि क्या किस तरीके से आपने प्लान किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने मिनिस्टर साहब से कहा कि ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट हमारा, ये ना सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स आए पास्ट में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनको रिहेबिलिटेट करें, लेकिन आगे भी तैयारी करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीली जो हो रही है, आप अपनी वो प्लानिंग करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ मिलके हम इस सूबे के लोगों की और बेहतर खिदमत करेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप इधर आए। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी साथ चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने हाईवेज पर रेस्क्यू के अमले को आलात फराहम किए हैं। सुपर हाईवे का ग्रीन बेल्ट पूरा, जैसे आप आएंगे ना, वो पूरा कब्जा हो रहा है, वहाँ मिट्टी डाली जा रही है, दीवारें बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, मार्केटें बन रही हैं, पूरा ग्रीन बेल्ट कब्जा किया जा रहा है, और ये सब इंतजामिया की सरपरस्ती में हो रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। तो इस पर जो है वो आप क्या कहेंगे, उसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि बात है, कहीं पे भी सुपर हाईवे हो या कहीं पे भी हो, इस तरीके की इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है, और मैं इसको चेक करके मैं कह रहा हूँ ना, उसके तदारक सवाल ये कि तालीमी बोर्ड के इम्तहानी नताइज पर गुज़िश्ता 2 साल से सवाल उठ रहे हैं, कुछ उसका मामला सियासी और कुछ इंतजामी भी है। बहुत इश्यूज हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा इशू ये है, और आज मैंने सुबह, खैर वो एक अलग मसला था, लेकिन उसकी भी बात कर लेता हूँ, मैं मुझे मौका मिला है। हमें सबसे ज़्यादा मसला होता है जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करो, उसी इदारे के लोग आके कोई एक्सटेंशंस पे चल रहे हैं सदियों से, मैं तो सदियां कहूँगा, इसलिए लग रहा है सदियों से चल रहे हैं। जो है, मैं जो बात कर रहा था, आज सुबह मैंने एक मीटिंग की है जिला अस्पताल, जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो
शख्स को निकाला, कहते वो डेपुटेशन पे है, और जो मुझे दोबारा समरी भेजी गई उसमें 3 नाम थे, वो तीनों उस डेफिनेशन के हिसाब से डेपुटेशन पे है, और उसके अपने इदारे में 19 ग्रेड से ऊपर कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, और उसके बावजूद पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। तो आज तो मैंने कहा है कि मैंने तो, बल्कि आपने कह दे, मैंने कहा है भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दें। अरशद, गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई है जिसमें फैसला ये हुआ था कि, या फैसला हुआ या गौर किया गया कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कुछ 14,000 एकड़ ज़मीन उमरकोट में दी जा रही है, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान को। सिंध में कितनी ज़मीन दी जा रही है ऐसी ग्रीन इनिशिएटिव? गुज़िश्ता रोज़ या गुज़िश्ता कुछ, मैं किसी मीटिंग में ऐसी में शामिल नहीं हुआ था। हाँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ हुई है, डिटेल है। हमने जो एक चल रहा था 52,000 और समथिंग एकर्स कितनी थी उधर दिए, उस पर काम शुरू है कि वो ज़मीन है। देखें, जो भी ज़मीन ग्रीन इनिशिएटिव के तहत दी गई उसमें या दी जाएगी, अभी तक तो दी जो 50,000 एकर्स जो दी है उसमें यही तरीक़ाकार है कि वहाँ से अगर कोई उधर बैठा है तो उसको हटाया नहीं जाएगा, पानी का इंतज़ाम वो खुद करेंगे, ये गैर आबाद ज़मीन है सिर्फ वो दी जाएगी। तो उसके ऊपर अगर है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट खुद अपने काफ़ी इनिशिएटिव कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें। सीएम साहब ये बता दें, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब जो है वो बैरूनी ममालिक से उनके लिए सिफारिशें आ रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, तो उसको ये उन्हीं से पूछें, तो ये उन्हीं से पूछे। मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, उन्हीं से पूछे। मैंने कहा ना कंटेम्प्ट करूंगा कोर्ट के मसले को हल करने के लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने हाईवेज पर रेस्क्यू के अमले को आलात फराहम किए हैं। रेस्क्यू 11, 22 अपनी हंगामी खिदमात सर अंजाम देता है। तरबियत याफ्ता अमला बहुत जरूरी है। मजीद उन्होंने कहा कि तजावुज